उनको मुर्दा तस्वर कर रहे हैं, मार रहे हैं किनको मार रहे हैं? आप कह रहे हैं वो मर गए हैं। तो आप हुसैन की तो करबला किसी को रुलाने के लिए नहीं है। ढोल बज रहे हैं, नहीं, गलत है। तो लोग जो एक सेकंड मैं کہ چہلم یا کل کرنا یا ساتواں کرنا مجھے کسی روایت سے ثابت کرتے ہیں. آپ کا یہ اعتراض کا جواب مل جائے گا. یہاں ماتم ہوا ہو وہاں اہو بقا کرنا جائز ہے. شہید بے شک زندہ ہے لیکن وہ شہید ہو لیکن ظلم جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 20 سفر کے حوالے سے غم کی بات یہ ہمیں غم کرنا چاہیے. وہ سب سے بڑی ہستی امام حسین ہی ہمارے لیے, یہ بھی ان کے غلام ہے. داتا حضور بھی پہلے ہمارا یہ ان کی غلام ہی ہے نا. جو لوگ اللہ کے راستے پر مارے جائیں انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے مگر تمہیں شعور نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ زمور میں فرماتے ہیں تم مردوں کو سنا نہیں سکتے, اور آپ لوگ یہاں پر اپنا جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آتے ہیں. تمام کا تمام لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے یہ تمام کا تمام ذکر بتوں کے اوپر آیتیں اتری ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے پوری آیت اتاری لیکن بیوقوف لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ نے کیا فرمایا, سن لو بے شک اس میں شک نہ کرنا. عشق ہوتا ہے نیوا, پوچھ کے نہیں ہوتا کہ بھائی میں اتنا عشق کرنا ہے یا اتنا عشق کرنا ہے. عشق کا انداز ہی اپنا ہوتا ہے. عشق کی کیا ہے, عشق صحابہ کرام نے میں نے آپ کو بتایا وضو کا پانی لیتے ہوئے پوچھتے نہیں تھے کہ یہ پینے سے بدعت تو نہیں ہو جائے گی, شرک تو نہیں ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. منظار قبری وجبت لہو شفاعتی. تخت بلقیس حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بعد تھوڑا سا زبور کا تھوڑا سا علم تھا تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا دور کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے کیا وہ چائے کے برتن اپنے گھر کے لا نہیں دیکھ سکتے انگریز کے؟ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے میرا آپ سے سر, آپ انہیں داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں. داتا کا مطلب ہے دینے والا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ داتا میرے پروردگار کی ذات ہے. ورلڈ کو میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے اوپر کہ لفظ داتا اللہ کے نام میں موجود ہے تو مجھے یہیں پہ قتل کر دو. کچھ نہیں ہے, آپ ساتھ آ جائیں, آپ بھی آ جائیں سر. کاشف بھائی آپ بھی آ جائیں. لائنیں چل رہی ہیں سر, میری آواز آ رہی ہے سر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل صحافت کی دنیا. ناظرین میں موجود ہوں اس وقت حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر. یہاں پر لاکھوں کے حساب سے زائرین کی آمد. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو کوئی آتا ہے. جی ادھر آئیں بیٹے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بات بیٹے آپ ہی کی بات ہے, بری بات ہے. آپ چھوٹے بھائی ہیں, ویری شیمفلی بیٹے. آپ کے لیے آئے ہیں بچے, اگر کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کریں. آپ بھائی ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ لوگ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کیوں آتے ہیں. لوگ یہاں پر موجود ہیں, زائرین یہاں پر موجود ہیں. ایک علامہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, انہی سے میں سوال کرتا ہوں. علامہ صاحب, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ زمور میں فرماتے ہیں کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے, اور آپ لوگ یہاں پر اپنا جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سلام کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور, اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ تم جایا کرو. تو اس پر کیا کہیں گے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا مردے سن نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, یہ تمام کا تمام لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے یہ تمام کا تمام ذکر بتوں کے اوپر آیتیں اتری ہیں, نہ کہ اولیاء اللہ پہ اتری ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی شان سننی ہے تو یہ ہے 11واں سپارہ نصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے پوری آیت اتاری لیکن بیوقوف لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ نے کیا فرمایا, سن لو بے شک اس میں شک نہ کرنا. اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے, نہ کچھ غم, نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. اللہ اتنا واضح فرما رہا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بے شک
जो लोग अल्लाह के रास्ते पर मारे जाएं उन्हें मुर्दा तस्वुर भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है मगर तुम्हें शऊर नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक है, औलिया अल्लाह ला यमूत, औलिया अल्लाह मरते नहीं बल्कि वो जिंदा हैं। हदीस है कुदसी, आप अलैहिस्सलात अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाना व जल्ला जलालहु अम्मा नवालो फरमाते हैं, जो अल्लाह का वली होता है वो जब देखता है, उसका देखना मेरा देखना, उसका चलना मेरा चलना, उसका खाना मेरा खाना, उसका पीना मेरा पीना, हर चीज़ अल्लाह फरमाता है, उसका अमल मेरा अमल है। जब अल्लाह अपना अमल फरमा रहा है तो फिर ये बताइए कि ऐसा शख्स वो क्या उसको हम कहेंगे ये मर चुका है? नहीं। तीसरी और आखिरी बात, जब एक इंसान बॉर्डर पे जाए, इंडिया की फौज से लड़े और मर जाए, उसे कुरान का शहीद है। शहीद शहीद के मुतल्लिक फरमाया शहीद जिंदा है। जिंदा है तो फिर औलिया अल्लाह क्यों नहीं जिंदा? औलिया अल्लाह कैसे औलिया अल्लाह इसलिए कि वो हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में होते हैं, अल्लाह के साथ उनका मामला होता है। हम शहीद कैसे? शहीद तो नहीं है जी, अल्लाह के शहीद तो नहीं शहीद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया है? अल्लाह ने फरमाया है वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फी सबील। एक मिनट आप सुने, हम भी सुननी है, मेरी बात सुने। वला तक़ूलु, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें, पहले मैं बोल रहा हूँ। वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फी, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पे मारे जाएं, ये क्या नमाज रोज़ा हज उम्रा अल्लाह का रास्ता नहीं है? बेशक बेशक। ये किनका? बुतों का रास्ता है। जब अल्लाह ने कहा कि जो लोग मेरे रास्ते में मारे जाएं, तो अल्लाह का ये रास्ता है जो औलिया अल्लाह का रास्ता है। ये सवाल कर रहे हैं कि देखें, एक बल्कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, आपको भी जवाब मिल जाएगा। एक शहीद वो है, भाईजान आप कैमरा छोड़ेंगे तो सारे आएंगे, सबके चेहरे ब्लर हो जाएंगे प्लीज़। एक शहीद वो है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए, दीन इस्लाम के लिए घर से निकला और जाकर शहीद हो गया, उसका खून निकला। एक शहीद वो है, लेकिन ये शहीद अफजल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अफजल शहीद है वो शहीद जहाद बिल नफ्स करने वाला अफजल जो है ना, वो शहीद है। और ये औलिया इकराम जो हैं, ये अल्लाह के नेक लोग हैं, इन्होंने जहाद बिल नफ्स किया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां सरवरे कौनैन, उन्होंने भी जहाद बिल नफ्स किया, जिसकी वजह से औलिया इकराम को शहीद कहा जाता है और इनका एहतराम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है मेरा आपसे सर, आप इन्हें दाता गंजबख्श अली हजवेरी कहते हैं। दाता का मतलब है देने वाला। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दाता मेरे परवरदिगार की ज़ात है, तो आप हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी को क्यों अपना जो है उनको दादा कहते हैं? सबसे पहला मेरा सवाल ये है, कोई भी किसी भी मसला का कोई भी बड़े से बड़ा आलम मुझे ये साबित कर दे, वर्ल्ड को मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया के ऊपर, कि लफ्ज़ दाता अल्लाह के नाम में मौजूद है तो मुझे यहीं पे कत्ल कर दो। अगर दाता का लफ्ज़ अल्लाह के नामों में मौजूद नहीं तो फिर ये शिर्क बिदअत की इस तरह के हमारे ऊपर फतवे लगाना ये गलत है। गनी किसको कहा जाता है? उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी तो अल्लाह है, तो उन्हें क्यों कहा जाता है? गनी तो अल्लाह है यार, ये बात समझे ना यार, कोई कर रहे हैं आप क्या? गनी लकब दी है जी, लेकिन नाम इनको भी अगर हम इनसे मांगते हैं ना, अल्लाह का वास्ता देख इनसे मांग, हम इनसे नहीं मांगते, हम अल्लाह से इनसे कहते हैं हमारे लिए आप दुआ करें। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप हमारे लिए उनसे दुआ करें। अच्छा, सवाल यहाँ पर फिर सुने, देखें दाता इस सेंस में, देखें भाईजान कैमरा छोड़ेंगे तो सारे आएंगे, आप थोड़ा कंजेस्ट हो जाएंगे तो कैमरे में आएंगे, चैनल पे आएंगे आप। अगर आप थोड़ा ऐसे नहीं फैलेंगे आप कोई भी कैमरे में नहीं आएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है सर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उस्मान गनी एक लकब है, यहाँ पर दाता का लकब देने वाले, वहाँ पर हजरत उस्मान को गनी का लकब देने वाले मेरी नबी की ज़ात थी। यहाँ पर दाता को अली हजवेरी को दाता का लकब देने वाले आप लोग हैं। किस सेंस में दाता का लकब दिया सर आप? पहली तो बात ये है कि मैंने अर्ज ये की है, दाता का मायने देने वाला ऐसे ही है। क्या मिला सर? देने वाला। अब लफ्ज़ आता है कि लफ्ज़ दाल अलिफ दा ते अलिफ ता दाता अल्लाह के नामों में नहीं है। मायने बेशक देने वाला बनता है, देने वाला तो अल्लाह है, देने वाला अल्लाह ही है। लेकिन जी कर दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दाता के आपने सवाल पूछा ना कि दाता क्यों कहते हैं? अल्लाह पाक के 99 नेम्स हैं,
اس میں ٹھیک ہے اس میں ایک لفظ پہ داتا نہیں ہے. ٹھیک ہے داتا ہے فارسی کا لفظ. داتا کا مطلب ہے دینے والا, ٹھیک ہے, یا مددگار. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولاہ فحاز العلی المولا, من کنت مولاہ فحاز العلی المولا. ٹھیک ہے, میں مولا اس کا اب مولا تو ہمارے اللہ بھی ہیں, ہم اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں, لیکن مولا علی کو کیوں کہا گیا کہ مولا کا ایگزیکٹلی جو معنی ہے وہ ہے مددگار, جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار. پھر جب ہم دعا کرتے ہیں نا اس میں ایک دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اب پالنے والا رب ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی پال رہے ہیں, تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ ایک ڈیفینیشن بتائی گئی ہے اور اس کا معنی سمجھایا گیا. پھر آپ نے جو مردوں والی جو آپ نے سورہ زمر کی جو آیت تھی نا کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے, بالکل قاری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بتوں پر آیات اتری تھی. ان لوگوں نے کیا کیا, خاص کر کے وہ جو چھوٹا مرزا اس کی بات کروں گا, اس نے انجینئر علی مرزا جی اس نے یہ بات کی کہ تم مردوں کو جو سنا نہیں سکتے تم ان کی بات کرتے ہو. اب اگر ان کو نہیں سنا سکتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا پر جایا کرو اور ان کو کہا کرو اہل القبور, نہیں کہا یا اہل القبور. بدر والا واقعہ دیکھیں, جس جگہ پر عتبہ اور شیبہ کو واصل جہنم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں اللہ نے واصل جہنم کیا اور مجھے اللہ نے حق ساچ کے ساتھ. پھر سن لیں سر سوال بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بہت سے لوگ سن رہے ہیں سر, نہیں سمجھ پائیں گے, کمنٹس کریں گے سر ہم داتا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی داتا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں بھی داتا گنج بخش علی حجویری کہہ رہا ہوں. داتا کا مطلب دینے والا. کیا حضور دینے والا تو اللہ تعالیٰ, مددگار بھی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, تو کیوں کہا جاتا ہے داتا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آئے تھے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب وہ آئے, جب یہاں پر 40 دن جب یہاں پر کسی نے 50 دن بولا, 40 دن کہا, 40 دن بیٹھ کر انہوں نے اپنی ایک منزل پار کی, ان کی منزل رکی ہوئی تھی. جب وہ واپس جانے لگے اور الٹے پاؤں گئے, ادب کی بات ہے نا, الٹے پاؤں نکلے تو انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ لقب ان کی طرف سے دیا گیا جنہوں نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. ان کو فیض ملا, ان کو روحانیت ملی. اپنا میں جو جواب کی طرف آ رہا ہوں, ان کو روحانیت ملی. داتا صاحب یہاں پر آئے نا, ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی, ان کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد قائم کر کے نا انہوں نے لنگر خانہ قائم کیا اور اپنی جیب میں سے لوگوں کو کھانا کھلایا. یہاں پر تو ایک بندے کا پلازا ہو نا تو وہ سوچے گا کہ یار میں جو ہے اس کو لنگر خانہ قائم کروں اور اس کو میں کھلاؤں. انہوں نے تو اپنی جیب میں سے سارا کچھ کھلایا, انہوں نے فیض بانٹا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر سال یہ ٹھیکہ شروع ہوا تھا 100 کے حساب سے, 100 کے حساب سے ٹھیکہ ہوا تھا جوتیوں کا, اب ہے کروڑوں کے حساب سے. اس کا مطلب ہے 100 لوگ سے شروع ہوئے, کروڑوں لوگ آتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے, یہاں پر کیا بانٹا جا رہا ہے؟ آپ جس سے بھی پوچھیں یار ہم داتا کے پاس جا رہے ہیں روحانیت لینے, فیض لینے, نہ کہ پیسے لینے. وہ تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. داتا صاحب یہ تھوڑا اوپر کیجئے گا, لوگوں کی وجہ سے چہرے بلار رو رہے ہیں سر. آپ اگر بالکل کھل جائیں گے تو آپ کو پروگرام کا بھی مزہ آئے گا, بہت سی باتیں آپ یہاں سے جان کر جائیں گے. علامہ صاحب میرا پھر آپ سے یہ سوال ہے, بہت سے لوگ آ کر یہاں پر سجدہ کرتے ہیں, سیڑھیوں کو سجدہ کرتے ہیں, مزار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں. آپ اہل سنت الجماعت کے نزدیک کیا یہ عمل درست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ سجدہ کرتے ہیں, یہ بالکل الزام ہے, جھوٹ ہے. کوئی بھی شخص اس طرح نہیں کرتا کہ سجدہ, ہاں چومتے ضرور ہیں, چومتے ہیں, دہلیز کو چومتے ہیں, آپ کے جو قدمین شریفان والی جگہ ہے اس کو چومتے ہیں, لیکن سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا. چومنا جائز ہے؟ ہاں چومنا جائز ہے, چومنا جائز ہے. کوئی روایت بٹا دیں کیونکہ بات پڑھی لکھی. عشق حضور میں ایک بات بتاؤں, عشق ہوتا ہے نیوا, پوچھ کے انچی ٹیپا نال لا کے نا عشق نہیں ہوتا. حضرت میں عشق ہوتا ہے انیوا. عشق آپ پوچھ کے نہیں کرتے. صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پوچھ کے نہیں لیتے تھے کہ حضور یہ پانی لے لیں,
मैं ये शिरक ना हो जाए कहीं। दोबारा बात सर, आप ये कैमरे के आगे सर कर लेंगे सर, प्रोग्राम क्या होगा भाई? मैं आपकी मेहरबानी है, ये इतनी बड़ी इतनी मेरी गल हो रही है। अच्छा, रिवायत ये ढोल भी जो बजाते हैं ये भी सही है। साल के बाद सर, आपने कोई पेश करनी है सर, इश्क अन्य बात सर, इश्क अन्य देखें जी, मुझे ना कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैंने जो समझा है ना वो ये समझा है कि इश्क होता है अन्नेवा, पूछ के नहीं होता कि भाई मैं इतना इश्क करना है या इतना इश्क करना है। इश्क का अंदाज ही अपना होता है, इश्क की कोई हद नहीं होती। आप देखें ना, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। हर बंदा कहता है कि मेरा ईमान सलामत रहे, इश्क सलामत रहे, ये कोई नहीं मांगता। इश्क की क्या है? इश्क सहाबाए किराम ने, मैंने आपको बताया, वुजू का पानी लेते हुए पूछते नहीं थे कि ये पीने से बिद्दत तो नहीं हो जाएगी, शिरक तो नहीं हो जाएगा, बल्कि लड़ते थे कि असर का तूने लिया, मगरिब का तो मुझे लेने दे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हिजामा हुआ तो उस पे एक सहाबी को हुक्म दिया गया कि इसको जो है आप जाके जी उनको जाकर कहीं दबाएं, लेकिन वो उन्होंने जाके करें, पेश करें। मैं मफहूम बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने जाके तो वो पी लिया, खून मुबारक पी लिया, दबाने के लिए कि वो उन्होंने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक मैं कहीं ज़मीन पे दबा दूं कि ऐसी जगह ना हो जहाँ पे पाकी पलीदगी का ख्याल ना रखा जाता है। तो उन्होंने वो पाँव आगे तो बेहुरमती हो जाएगी। बात है हुजूर वो खून पी गए। एक सहाबाए किराम ने उनको देख लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर ये तो आपका खून पी गए। तो उस पे मना नहीं फरमाया, उस पे ये नहीं कहा कि आपने शिरक कर दिया, गुनाह कर दिया। फिर उस पर ये कहा गया कि आप पर अब दोज़ख हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत वाली जो बात है ना, मैं जवाब दे दूं फिर आप बात करें। रवायत के आपने कहा, रवायत जिंदाबाद, रवायत वाली जो बात आपने की ना, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक मिनट, रवायत वाली जो बात की ना आपने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल के बाद जो चूमने वाली बात है, क्या ये जायज़ है? सही हदीस हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने नाम पहले ले लिया लेकिन ये रवायत में बाद में आता है। उस वक़्त का हाकिम था मरवान बिन हाकम, ठीक है। वो आ रहा और उसने देखा कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर अपना दायां रुखसार रखा हुआ है। उसने वहाँ पे आके उनको उठाया कि ये तू क्या कर रहा है, तू शिरक कर रहा है। जब उन्होंने अपना चेहरा मुबारक उठाया तो उन्होंने कहा कि ये तू मुझे मत समझा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जी उसके शफाअत भी वाजिब है। हाँ जी। और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं अल्लाह वालों से बातें कर रहा हूँ, मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहरी विसाल को 3 दिन हुए थे। अब दाता ज़ूर की बात है, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपनी वालदा के जाने के बाद उनकी कब्र का बोसा ले सकते हैं तो वो उम्मत के वली, और एक उम्मत का वली वो था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मत का वली है सूरह नमल, तख्ते बल्कीस, हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बाद थोड़ा सा ज़बूर का थोड़ा सा इल्म था, तो पलक झपकने से पहले वो तख्त ला कर दे सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का दौर का वली, पलक झपकने से पहले क्या वो चाय के बर्तन अपने घर के ला नहीं दे सकते अंग्रेज के? तो ये मेरे दाता ज़ूर की जिंदा करामत है। आज जितने भी लोग हैं ये जिंदा करामत है। दाता ज़ूर, एक मिनट, दाता ज़ूर की जिंदा करामत क्या है? 1000 साल हो गया है, 1000 साल से यार लोग चलते ही आ रहे हैं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो ये चर्चा है, ये लोग आ रहे हैं चर्चे के लिए, अपने आते हैं, दुआएं करते हैं इनके वसीले से। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, सूरतुल माइदा। ये मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल करने से पहले तमाम देखने वाले सामीन
किसी की अगर दिल आज़ारी होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये सवाल मेरे ज़हन में चल रहा है, आज 20 सफ़र है सर, जहाँ पर एक साइड पर खतूता हजूर दाता गनबख्श अली हजवेरी का उर्स मनाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है, और वहाँ पर ही शियाने अली जो हैं अहले बैत का गम मना रहे हैं सर। ये गामे शाह सर, यहाँ पर गम और वहाँ पर दाता साहब का उर्स सर, वहाँ पर ढोल, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इस पर सर क्या कहेंगे आप, कोई जवाब देना चाहेगा? जवाब इसका अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आपको बात होगी इंशाअल्लाह ताला आपने काटनी नहीं है सर नहीं, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। अब रही बात, जो भी बात आपने की है ना, जो मैं उस दूसरी बात पे आऊँगा कि एक तरफ गम, हमने सीधी बात है कि ये रवायात रस्म व रिवाज है, ये सहाबा से साबित नहीं है। मेरा एक सवाल है, आपसे ही सवाल है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वाक़े करबला के 40 साल तक ज़िंदा रहे, क्या उन्होंने ऐसा काम किया? सही बुखारी की हदीस पेश करने लगा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में कोई नूहा करे, जो तुम में कोई गिरेबान चाक करे, अपने मुंह पर थप्पड़ मारे, वो हम में से नहीं। क्या इमाम हुसैन ने एक रात पहले अपनी आल को इकट्ठा करके ये बताया नहीं था कि अगर मैं तुम में से चला जाऊं तो तुमने मेरे बाद ये काम नहीं करना, अपने पर्दे का ख्याल करना है? तो भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ ढोल बजाना वो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ही नहीं है, सबसे पहले हराम है, ये चीज़ नहीं है, ना साहिब मज़ार की तालीमात है, ना हमारे उलमा ने ये बात बताई। आला हज़रत का फतावा रिज़विया पढ़ लें आप, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक से ज़ायद चादर का बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और जिस पे कुरानी आयात लिखी है उसकी बेहुरमती होती है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। कब्र वाले को कोई फ़ायदा नहीं, उसको फ़ायदा क्या है? अगर आप सीधे रास्ते पर चल पड़े, आपने पंजगाना नमाज पढ़ी, आपने कुरान पढ़ा, आपने अपने माँ बाप की खिदमत की, ये है उनकी तालीमात। ये तालीमात नहीं, कशफुल मजूब अगर कोई पढ़े उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, वाज़े लिखा हुआ है। अगर आप जो जमात के, हाँ अपना आप कह रहे हैं कि ढोल बजाना हमारे औलिया इकराम की तालीमात में शामिल नहीं है, आप कह रहे हैं गम मनाना किसी जगह पर रवायत में नहीं है, और आपको लोग कमेंट्स में ये भी कहेंगे क्या उर्स मनाना साबित है? बिल्कुल साबित है जी, उर्स मनाना। उर्स का मतलब सबसे पहले तो वाज़िया कर दूं, अल्लाह करे कि मेरी बात लोगों को भी समझ आ जाए और मेरे उलमा किराम है मुझे इस बात पे शाबाश दे। दोबारा इसाले सवाब करना, 1 साल बाद, पूरे साल बाद, हर साल बाद उनका दिन मनाना। क्यों? जो अल्लाह का वली है, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब अल्लाह का वली इस हालत में चला गया कि उसने अपने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया, और उसकी इस दुनियादारी, जो दुनिया फ़ानी है, जिसमें अल्लाह ताला को नापसंद है, ये दुनिया जो उसने बना के भी नापसंदीदा की, जिस तरह तलाक हलाल है लेकिन लफ्ज़ नापसंद है, ऐसे ही है। इसी तरह वो चले गए। आज हम उनके पास जा रहे हैं और उनके इसाले सवाब का तरीका जो मना रहे हैं ना, वो असल तरीका ये है कि जाके कुरान खानी की जाए, दरूद सलाम पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए, और उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह उनसे राज़ी, और अगर वो राज़ी तो वो दुआ हाथ उठाएंगे, वो अपनी उम्मत को भी बख्शवा देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्शवा देंगे। इनके अलावा बाकी जितने भी अमल हैं आप उनको हराम समझते हैं? मैं ढोल बजाना, नाचते जाना और ऐसा काम करना, ये गैर शरई है, औलिया कराम की कोई तालीमात नहीं है। मैं क्लियर करूं, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से और दाता हुजूर की तरफ से, क्योंकि 1000 साल हो गए हमने तो देखा नहीं, अगर देखा होता तो अपनी जानें निछावर कर देते। नाज़रीन, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मिली, वो अच्छी बात ये मिली कि बहुत से लोगों का ये है कि औलिया किराम सुनते नहीं। जनाब ने कहा कि औलिया शहीद हैं, शहीद किस ज़ुमरे में हैं? मैंने आपको बताया कि सबसे अफजल जहाद बिल नफ्स है, और वो जहाद बिल नफ्स क्या है कि यानी कि एक जहाद तो वो है जिसमें खून निकल गया, जान चली गई, अपना जो इंसान खाल के हकीकी से जा मिला, और एक जहाद वो है जो इंसान अपने नफ्स से जहाद करते करते खाल के हकीकी से जा मिला, और ये सबसे अफजल जहाद है। और गम की बात है, 20 सफ़र के हवाले से गम की बात, ये हमें गम करना चाहिए। वो सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन ही हमारे लिए, ये भी उनके गुलाम है, दाता हुजूर भी। पहले हमारा ये उनकी गुलाम ही है ना, वो हसन
हसनी हुसैनी है दाता हजूर, लेकिन पहले हमारा फर्ज है 20 सफ़र का जो चेलम है ना, इसको भी गम से इससे गम करना चाहिए इस पे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी हस्ती हैं, अहले बैत का घराना बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे नहीं हैं। है, लेकिन हमारे लिए पहले वो इमाम हुसैन है और मौला अली बात की कर रहे हैं। जो अली मदद, एक बताएं, तो मौला के मानने वाले हैं, ये मुझे सिर्फ मानने वाले हैं। मेरे भाई ये बात बता दें, मुझे ये बात मैं सवाल पूछूंगा छोटा कैमरा सा, छोड़ देंगे तो मुझे भाई ये सारे बताएं कि 1 मिनट जी शेहलम, नहीं, 1 मिनट भाई सुने ना आप, आपने सुलम हुआ करबला में, हुसैन मनाना गुनाह। मैं सुने तो तो याद करना चाहिए, क्यों ना याद करें सुने तो सही ना, यजीद ने तो ना यार सवाल मेरे से सवाल लें अभी सवाल मेरा सुने भाई, मेरे आपके नॉलेज के लिए अभी भाई सुने तो सही यार। मर्द होते नहीं है। सर नहीं बात अरे भाई आप सवाल सुनेंगे कि नहीं? अगर आपके पास सवाल नहीं जवाब नहीं, आप ले ले। एक मिनट, ये आप उनको मुर्दा तस्वर कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको। किनको मार रहे हैं? आप कह रहे हैं वो मर गए हैं? मैंने नहीं कब कहा, तो फिर क्यों ये बात कर रहे हैं? गम कर रहे हैं। एक सेकंड अफसोस होगा ना, जिस दिन अफसोस होगा उस दिन लिए नहीं तरसे, पानी तरसा उनके लिए। अगर कोई नबी की औलाद हड्डी मार के एक मिनट, जमजम निकाल सकती है तो आप हुसैन की तो बात करबला किसी को रुलाने के लिए नहीं है। तो लोग जो एक सेकंड मैं बात क्लियर कर दूं, जो ढोल बजाता है वो अहले सुन्नत वल जमात के फिरके में से नहीं है, ये हमारा ईमान है। करबला में मैंने इस बात को क्लियर बताया है कि अहले सुन्नत वल जमात की ये ढोल बजाना ये तालीमात नहीं है, लेकिन मेरा एक से फिर सवाल है। एक मिनट यार, भाई सवाल करने दे भाई, मुझे ये बताएं, मुझे ये बता दें, सिर्फ ये बता दें कि चहलम या कुल करना या सातवा करना मुझे किसी रवायत से साबित करते हैं। आपका ये तराज का जवाब मिल जाएगा। नहीं देखिए ना, मेरी साबित कर, मेरी बात सुनना सर। में बोला गया शहीद जिंदा है, शहीद का मैं चेलम की बात, मैं ठीक है। 40वें की बात हाँ, वही। करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? चले आप उन्होंने, मैं सिर्फ गम की बात की है कि आज के दिन अफसोस करना चाहिए, ढोल नहीं बजाना चाहिए। देखिए मेरी बात, अब चेलम की बात पता क्या है? अच्छा यहाँ पर बात करने का मकसद है कि बात समझना। जो सवाल या मातम हुआ हो वहाँ अहो बका करना जायज़ है। शहीद बेशक जिंदा है, लेकिन वो शहीद हो, लेकिन जुल्म जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? जुल्म कौन हुआ? आप कह रहे हो एक मिनट अच्छा इस टॉपिक को अच्छा भाईजान एक मिनट प्यार से देखें मेरा समझाना है। इस पे बात नहीं कर भाईजान बात बता क्या, मुख्तसर सी बात है। अगर मौला हुसैन सलाह करें चले नाज़रीन, ये था हमारा अवामी मिला जुला रद्द अमल, और आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरा अभी रिसेंटली एक अकाउंट जिसके फॉलोवर्स 5 लाख और अपना उसके जो लाइक्स है 13.5 मिलियन थे, और वो अपना मैंने एक कादियानी के बारे में बात की थी। कादियानी काफर है और अल्हम्दुलिल्लाह काफर है और कादियानियों को ता क़यामत इंशाअल्लाह ये जिंदगी जब तक है इनको काफर कहते रहेंगे, और इनको ये काफर हैं, हमारे इस्लाम के मुताबिक काफिर है, हमारे आइन के मुताबिक काफिर है। कोई बात नहीं करते हैं वो सबसे बड़े लानती है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। ये कादियानी के मुंह पर आयत मारते हैं तो वो चिड़चिड़े। बेशक और ये काफर है। बाकी शिया हो या सुन्नी हो, हमारा आपस में एक इल्मी इख्तलाफ है, और ये इल्मी इख्तलाफ जहाँ पर बात मेरे नबी की आएगी ना वहाँ पर हम एक इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन है, ये हमारा ईमान है। ना उनके बाद कोई नबी आएगा, और ना ही अपना हम ऐसा सोच सकते हैं, ना ही ऐसा तस्वुर कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है टिकटॉक पर, सहाफ़त की दुनिया 3 के नाम से। बराए करम आप उसको अपना जो है
फॉलो कीजिएगा। अभी मेरा चंद घंटे का अकाउंट और आपका प्यार है, उसके फॉलोवर्स माशाल्लाह 1200 हो गए। मैंने 6 घंटे 7 घंटे पहले वीडियोस लगाई और लोगों ने मुझे प्यार दिया और उम्मीद है ये भी इंशाल्लाह मिलियंस में जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।